Good evening, friends. Welcome to WICCI Wellness and Wellbeing Council, Gujarat. Just please be online. We'll wait for a few audience. Welcome everyone. I'm Prerna Vaswani, State President of WICCI Wellness and Wellbeing Council, Gujarat. First of all, I would like to introduce about WICCI platform. It's a free global platform with a collective strength of more than 5 lakh members, and it is spread into 150 plus countries. It boosts and builds women's entrepreneurship and businesses through greater engagement with government institutions, global trade and networks. Apart from this, we have other interconnected platforms like All Ladies League, Women Economic Forum and She Economy. We have collaborated with WICCI Animation and Entertainment National Council and Apni India Gali. I am very thankful to Sonia ma'am and WICCI platform for this. So today on this a very special day, it's my privilege to introduce another inspiring and wonder woman, Ms. Charu Khabre. She is a council member of WICCI Animation and Entertainment National Council. She is a Josh Talk speaker. She is owner and founder of Chavix Production. Just please be online. There was some technical glitch. So it's my privilege to introduce another inspiring and wonder woman, Ms. Charu Khabre ma'am. She is council member of WICCI Animation and Entertainment National Council. She is a Josh Talk speaker. She is owner and founder of Chavix Production. Her journey as a single mother and survivor of an abusive relationship is a true inspiration for us. I'm sure you'll get inspired for today's session. So let's welcome Ms. Charu Khabre ma'am. Just please be online. Hi, finally. Hello, good evening, ma'am. Hi, good evening. Bolo. I hope I'm audible. Yes, you are audible, very much audible. Tell me. Yeah, please be online, ma'am. So, hi, welcome to WSACI National Council Media and Entertainment second webinar or series on women empowerment. Yes. And thank you very much for accepting my invite. It's my pleasure to be with you, My ma'am. Yeah, it's my pleasure to. That is Yeah, thank why we are you. here for to create awareness and to empower the another women's. यस डेफिनेटली तो मैम जानना चाहूंगी कि आप कुछ अपने बारे में बताइए कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की इन अ फिल्म प्रोड्यूसर एज अ फिल्म प्रोड्यूसर प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए मैम. See, honestly, I started my journey of from housewife to working lady and from working lady to a businesswoman. So मैंने 2004 में अपनी जर्नी शुरू की है. मैं लोअर परेल में इन्फोविजन ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन में एज अ टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मैंने ज्वाइन किया था. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब एंड यू कैन से अ स्टेपिंग स्टोन. सो मेरी लाइफ का स्टेपिंग स्टोन था जहां से मैंने शुरुआत की. उसके बाद मैंने लाइफ में सिर्फ ग्रो ही किया है.
और फिर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, फिर मैंने मेरी मास्टर्स कंप्लीट की, और फिर धीरे धीरे फ्रॉम 2013 मैंने बिजनेस में एंटर किया एज अ सोशल मीडिया प्रोफेशनल। जब सोशल मीडिया मार्केट में नया आया ही था, तब आई वाज द फर्स्ट, लाइक जब मैंने सोशल मीडिया सीखा, और अपने बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट थे, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मराठी के सेलिब्रिटीज हैं, उनके कुछ पेजेस अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो फ्री में हैंडल किए, ताकि मुझे सीखने मिले, बिकॉज सेलिब्रिटी पेज हैंडल करना इज इटसेल्फ इज अ ऑनर। और तभी धीरे धीरे मेरा सोशल मीडिया का नॉलेज ज्यादा शार्प हुआ। एंड देन उसके बाद मेरी फिल्म मेकिंग की जर्नी तो थी ही साथ में। मैं विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हुई थी, वहां से मेरा असिस्टेंट मैनेजर का सफर बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मैंने युवा मैगजीन में एज अ ब्रांड हेड काम किया है, एंड दैट वाज माय लास्ट जॉब। उसके बाद जिंदगी में मैंने कभी भी किसी भी तरीके की जॉब नहीं की है, हमेशा ही बिजनेस में सरवाइव किया है। सो दिस इज इट, लाइक ये मेरी वर्किंग लेडी टू बिजनेस वीमेन की जर्नी है। मैंने बहुत ही थोड़े शब्दों में बताने की कोशिश की है। राइट, ग्रेट टू नो दिस मैम कि एज अ लेडी आप मीडिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। इट्स क्योंकि आजकल जो है काफी लेडीज जो है नहीं जाती है यही सोच के कि वेदर इट इज अ सेफ इंडस्ट्री और नॉट। सो यू हैव फर्स्ट, आपने जो है ये बैरियर इसको तोड़ दिया है आपने। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। दूसरा मैं जानना चाहूंगी कि मैं आपके प्रोफाइल के थ्रू गई थी, तो मैंने ये देखा कि आपका जो है starting journey, it was very challenging, like you had a love marriage, but it came to extend for the abusive. तो कुछ उसके बारे में अगर आप प्लीज साझा करें तो। सी मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि इंसान गलतियां करता है और गलतियों से सीखता है। और जैसे कि हम इंसान बार बार गलतियां करते हैं और बार बार सीखते हैं, अगर हमने जिंदगी में कुछ चीजें सीखी ही नहीं तो हम इंसान ही नहीं है। और अगर हमने अपने लेसन्स लिए नहीं तो हम हमारी आने वाली जनरेशन को क्या देंगे। सो या आपने बहुत अच्छे से मेरी प्रोफाइल रीड की है। मैंने 19 साल की एज में शादी की थी। ऑफ कोर्स इट वाज अ लव मैरिज। और मैंने जो इंसान से लाइफ में पहले, अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड में बोलना चाहूँ तो माय हस्बैंड वाज माय लाइफ फर्स्ट बॉयफ्रेंड। मेरी जिंदगी का पहला बॉयफ्रेंड था वो, जिससे मैंने शादी की, उसी से मेरे बच्चे हुए। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अक्रॉस। जनरली मुझे ऐसे लगता है कि देर इज वन इलनेस दैट इज कॉल्ड, एक तरीके की बीमारी है शक करना। पॉजिटिवनेस हर इंसान में होती है, आपको किसी को खोने का डर जायज सी बात है, होता है। जहाँ पे प्यार होता है वहां पे इनसिक्योरिटीज होती है, बट वो इनसिक्योरिटीज और जो डाउट्स होते हैं उनको अगर आपने आपके ऊपर हावी किया तो इट इज नथिंग बट अ डिसीज। ये एक डिसीज है जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप सामने वाले को उसका शिकार बना लेते हो। तो कहीं ना कहीं उस चीज का ऑब्सेशन, ऑब्सेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मुझे क्या लगता है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आप सामने वाले इंसान को आपकी प्रॉपर्टी ना समझे। आप ये समझे कि वो इक्वल है, आप ही की तरह दूसरा इंसान है, दूसरी जगह से आया हुआ है, उसकी परवरिश अलग है, आपकी परवरिश अलग है। आपको दोनों को एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आप दोनों जब प्यार में होते तो हर चीज एक्सेप्ट करते हो, कहीं ना कहीं कुछ रेड फ्लैग्स दिखते हैं जो हम अनसीन कर देते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे रेड फ्लैग्स मुझे शुरू दिखे थे जब उसने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा था शादी से पहले, हार्डली रिलेशनशिप के 2 या 3 महीने बाद। फिर धीरे धीरे करके उसने मुझे कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और मैंने वो होने दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप था कि उसको प्रूव करने के लिए कि दैट हाउ मच आई लव यू, मैंने कॉलेज छोड़ दिया बीच में ही, फर्स्ट ईयर में आके मैंने कॉलेज छोड़ दिया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत ग्रेट स्टूडेंट थी, बट ऑफकोर्स मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, बट मेरा माइंड हमेशा शार्प रहा है। आई डू हैव दैट क्वालिटीज लाइक लीडरशिप क्वालिटीज। आई एम अ बॉर्न लियो, तो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छे से थी। और मुझे पता था सही क्या गलत क्या, पर गलती से गलत एज में प्यार करने से या किसी से अट्रैक्शन होने से, और 80s में लोग हैं ना बहुत ज्यादा एडमेंट हुआ करते थे। एक परिपक्व सोच थी, एक मतलब स्टबन या फिर एक माइंडसेट हुआ करता था कि आप अगर एक लड़के से प्यार करते हो तो उसी से शादी करनी है। कहीं ना कहीं इसी माइंडसेट के साथ और इसी के साथ हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, और वो मैंने स्टिक किया था। लोग मुझे आज भी ट्रोल करते हैं। जब मेरा जोश टॉक्स में इंटरव्यू हुआ बहुत लोगों ने मुझे बेवकूफ बोला
है, बहुत लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके की रिमार्क्स दी। ऑफकोर्स यू कैन गो एंड चेक, मुझे सच में बहुत लोगों ने उस तरीके से रिमार्क दिए। कुछ लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि मैडम यू फॉट अ लॉट, ये वो सब। तो देखो, हेटर्स और लवर्स दोनों भी होते हैं, तो हमको किस तरीके से क्या लेना है। मुझे पता है मैंने गलतियां की, आई ओन माई, जो भी मिस्टेक्स मैंने की है जिंदगी में मैं ओन करती हूँ। सबसे बड़ी बात है आप मिस्टेक करो, करते रहो और उसको ओन करो और उसको इम्प्रूव करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितने मिस्टेक करते हो, कुछ मैंने तो चलो वो बैरियर तोड़ा भी। एक दिन आया जब मैंने वो डिसाइड किया कि नो, दिस इज नॉट मी, मुझे ये नहीं झेलना है, वो मैंने अब्यूज का बैरियर तोड़ा। बट कुछ कुछ लोग तो आज भी बच्चों का सोच के, नहीं मुझे बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊंगी। जैसे जो स्टॉक में मुझे एक लेडी ने लिखा था, मुझे 3 लड़कियां है, मैं चारू बहुत ज्यादा स्टक फील करती हूँ, तुम जो लिख रही हो रोज मेरे साथ होता है, रोज मार पिटाई होती है, बट मुझे हिम्मत ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। तो देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक डोमेन है, मैंने किया इसलिए सब करे, ये जरूरी नहीं है। और मैं किसी को भी ये सजेशन नहीं दूंगी कि शादी तोड़ो, ठीक है, मैं कोई नहीं हूँ। आप डिसाइड करो आपके लिए क्या सही है। आई एम नॉट हियर टू ब्रेक मैरिज, आई एम नॉट हियर टू ब्रेक रिलेशनशिप्स, आई एम हियर टू क्रिएट अवेयरनेस, आई एम हियर टू सपोर्ट विमेन्स हु कैन एक्चुअली डू वंडर्स इन लाइफ। तो क्या हुआ, आपको 3 बेटियां, वाई कांट यू काउंट दैट 3 आर द असेट्स। आप 3 बच्चियों को लेके बाहर निकलो, 3 बच्चियां मतलब 4 हाथ हुए, 4 8 हाथ हुए। आप टिफिन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो अगर आपकी एजुकेशन नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि लोगों को बाहर के खाने से ज्यादा घर का खाना अच्छा लगता है। यू कैन वंडर्स इन लाइफ। आपको सिर्फ पता होना चाहिए आपकी हिडन टैलेंट क्या है। कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसका जरूरत नहीं है आपको एजुकेशन होना चाहिए। बिना एजुकेशन के भी धीरू भाई अंबानी ने दुनिया पे राज करा हुआ है, तो वो लाइव एग्जाम्पल है। सो यस यस, हाँ। कि वही देखा गया कि जैसे थप्पड़ मूवी थी, तो उसमें बताया गया था कि सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से भी उसने केस किया था। कि अगर स्टार्टिंग से ही हम लोग जो है अगर स्टैंड लेते हैं अपना, तो वो जो है आगे चल के वो इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो आपके अंदर वो ऐसा करेज किस टाइम पे आया कि नहीं, अभी मुझे ये स्टेप लेना ही पड़ेगा, आई नीड टू ब्रेक दिस बैरियर ऑफ एब्यूजिव रिलेशनशिप। तो आप कैसे मिस, किस तरीके से आपको स्ट्रेंथ आया, किस तरीके से हिम्मत आई। जैसे आपने बताया कि दूसरी लेडीज को जो है यही मन में रहता है कि मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगी, फैमिली सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा, व्हाट विल बी द सोसाइटी, क्या बोलेगी मुझे। तो आपके अंदर ऐसा स्पार्क वो कब आया था मैम? सी ऑनेस्टली, बाकी औरतों की तरह मैं भी सहमी सहमी रहती थी, मैं भी बहुत शाय थी। जितना मैं एडवांस अभी दिख रही हूँ ऐसे नहीं हूँ। आप गो बैक टू माय ओल्ड मेमोरीज ऑफ फेसबुक, यू विल सी दैट आई वाज काइंड ऑफ बहन जी काइंड ऑफ। क्योंकि मेरे लाइफ के सारे डिसीजन मैंने अपने हस्बैंड को दे रखे थे। वो क्या बोलता था, वो जैसे बोलता था, बाल ऐसे रखो, ये पहनो, ऐसे बोलो, इससे बात करो, उससे बात मत करो, ये सब हुआ था। मुझे ऑनेस्टली बोलूं तो शादी से पहले 4 साल की रिलेशनशिप थी, जिसपे मैंने पूरा उसी के अंदर अपने आप को ढाल दिया था। वो जो बोलेगा वो करूंगी, वो था ना डायलॉग, जो जीजाजी बोलेंगे वो करूंगा। उस काइंड ऑफ वो सिचुएशन थी कि वो जो बोलता था वो मैं करती थी। उसके बाद मान लो चार शादी के और 4 साल। पहला साल शादी का बहुत ही डिजास्टर रहा, दूसरा उससे डिजास्टर, बच्चा होने के बाद तो वर्स्ट रोलर कोस्टर राइड थी मेरी लाइफ। मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब इट इज नॉट ओनली माई हस्बैंड, इट वॉज माई इन लॉज ऑल्सो। मतलब यार, 19 साल की बच्ची से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई मानेगा नहीं। आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई, बांद्रा जैसे जगह पे मैं बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। मेरे डैडी इतने हाई पोजीशन थे, मेरे सास ससुर भी ऑनेस्टली बोलूं तो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे। मेरी मदर इन लॉ 65 एज में ऑलमोस्ट वो मंत्रालय से रिटायर्ड हुई है, मेरे फादर इन लॉ भी पीडब्ल्यूडी में थे। तो इतनी एजुकेटेड फैमिली के अंदर भी आप नहीं बिलीव करोगे कि उन्होंने मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट किया है। मतलब लिटरली, क्या अगर कोई हॉल में बैठा हो तो रिमोट देने के लिए भी चारों को किचन से बुलाया जाता था। आई वॉज काइंड ऑफ सास भी कभी बहू थी कि एकदम आइडियल बहू, कि सबके हाथ में सब चीजें दे दो, पति के जूते भी पॉलिश करे हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने नहीं की है। तो ये सब भी किया था और मतलब चीजें होती रही। अगर आप ये सब भी हंस के कर लोगे, क्योंकि आप समझते हो ये मेरी ड्यूटी है, पत्नी होने के नाते, माँ होने के नाते, बहू होने के नाते, राइट, ये हमारी ड्यूटीज है, हम राजी खुशी कर लेंगे। पर रिस्पेक्ट भी तो नाम की कोई चीज होती है।
आप किसी के घर की लाडली बेटी लेके आ रहे हो तो आप उसको पैम्पर भी करो, अपनी बेटी की तरह ट्रीटमेंट करो। काम तो यार बाय डिफॉल्ट हमको करना पड़ता है, वो हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ विमेन, हम वो सब चीजें करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि विमेन्स किचन में काम करने के लिए बनी है, बट वो बैलेंस कर सकती है, वर्क कर सकती है, एक पत्नी होने के नाते, एक बहू होने के नाते, एक माँ होने के नाते, और एक वर्किंग लेडी। ये चारों रिस्पॉन्सिबिलिटी बाखूबी निभाने का जो टैलेंट है ना, वो विमेन के अंदर है। और ससुराल वालों को ये चीज समझनी चाहिए कि जितना आपका बेटा रिस्पॉन्सिबल है, उतनी आपकी बेटी, आपकी बहू भी रिस्पॉन्सिबल है। उसको नौकरानी नहीं, रानी की तरह अगर आप ट्रीट करोगे तो शायद मुझे लगता है कि उससे कई ज्यादा वो कर सकती है। एवरी वीमेन कैन मेक हिस्ट्री, बट बस उसको वो एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है वो 8 साल छोड़ दो, 2005 में मुझे करेज आया। आई एम टॉकिंग अबाउट 1997 टू 2005। मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही हूँ, नॉट ओनली विथ माय हस्बैंड, बट मेरे इन लॉज, मेरी सिस्टर इन लॉ, मतलब सम और दी, सी मेंटल टॉर्चर भी एक तरीके का अब्यूज ही होता है मेरी तरफ से, मुझे ऐसे लगता है। बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो जाती है, मैं इतनी डिप्रेस थी, इतनी ऐसी स्लिम ट्रिम थी कि मैं बहुत परेशान। और इसी वजह से मेरे बेटे के ऊपर भी काफी परेशानी आई है। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो और आपके आसपास की चीजें आपके फेवर में ना हो, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और उससे पेट में आने वाले बच्चे के ऊपर भी असर होता है। तो मुझे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 10 से 12 साल लगे मेरा मेंटल अब्यूज का प्लेटो तोड़ने में। इट इज नॉट इजी। तो किसी को भी लगता है कि मैंने 4 साल शादी की, 5वें साल में छोड़ दिया, नो नो, इट वॉजंट दैट इजी। बिकॉज हम जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, वहां पे हमारे माँ बाप की रिस्पेक्ट हमसे पहले आती है, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हमसे पहले आती है। उसके साथ ही साथ हम अपने इन लॉज का भी सोचते हैं, क्योंकि एक लड़की के ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी तो है नहीं, पूरे संसार का बोझ लेके हम चलते हैं अपने कंधों पे। जब एक लड़की घर के बाहर निकलती है, जब मैके में हो तो अपने परिवार की इज्जत, और ससुराल में हो तो पति और परिवार की इज्जत, तो हम अकेले कब होते हैं? हम तो हमेशा कोई ना कोई बोझ सर पे लेके ही होते हैं ना। तो यही है। सही है। राइट। तो आपको ये सब बैरियर्स, जो चैलेंजेस आपके यहाँ पर आ रहे थे आपके लाइफ में, तो आपने वो बैरियर्स को हटाने के लिए जो है कुछ फैमिली सपोर्ट आपको मिला था, कि फैमिली का कैसा रहा रवैया आपकी तरफ, कि अ, जो भी अब्यूज रिलेशनशिप हो रहा था, कि जो है फैमिली सपोर्ट मिला आपको कि नहीं, कि ठीक है एब्यूजिव रिलेशनशिप है तो यू कम एट होम, बैक टू होम, और इस तरीके से, या फिर एज अ पार्ट मीन्स, या फिर ऐसा था कि नहीं जैसे सोसाइटी का रवैया रहता है कि नहीं, अगर बेटी एक बार शादी करके गई है तो ससुराल में ही रहेगी, तो किस टाइप का था? ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मेरी बहुत सालों तक घर पे बताने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि 4 साल हम लोग रिलेशनशिप में थे। उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से एकदम पापा को, मम्मी को कन्विंस करके, भाइयों को से लड़ झगड़ के शादी की थी। तो मेरी खुद की हिम्मत नहीं बनी। और मेरी माँ और मेरे पापा की, तो पापा तो वैसे शांत ही थे, पर मेरी माँ ने मुझे शांत रह के भी बहुत अच्छी परवरिश दी है। मैं बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरी सिस्टर, मेरे भाई बहन बहुत ही सपोर्टिव रहे मेरे लिए। बट हमारे घर में रिवाज ही नहीं है। माई सिस्टर स्टिल मैरिड एंड शी इज हैप्पीली मैरिड, आई कैन से। बट हमारे घर में ये रिवाज ही नहीं कि हम एक दूसरे को इसलिए कॉल करते हैं कि हम अपनी दिन की परेशानियां बताएं। हम बने ही नहीं वैसे। मतलब मेरे परिवार में आई डोंट नो ये इनहेरेंट है या किस तरीके का टैलेंट है हमारे अंदर। मेरी मम्मी ने मुझे फोन किया तो घर पे सब कैसे है इतना पूछा है, कभी ये नहीं पूछा सास कैसे ट्रीट करती है, तुम्हारी ननद कैसे ट्रीट करती है, या क्या होता है। ना कभी दोस्तों से कुछ शेयर किया है। तो मतलब हमें आदत ही नहीं प्रॉब्लम शेयर करने की। सपोर्ट तो मुझे तब मिला जब मैंने जाके बताया। मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया होता तो बात अलग थी। तो बट जब मैंने वो प्लेटो तोड़ा और एक दिन जब बर्दाश्त के बाहर हुआ, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे पिलो दबा के, गला दबा के मारने की कोशिश की, और तब जब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब नहीं। और मैं आज भी उस इंसान का नाम लेते हुए बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी। वो एक लेडी थी जिसने मुझे उस टाइम पे वो करेज दिया था। मैं उससे एक ही बार मिली हूँ। वो पुणे में रहते, उसका नाम सपना है। उसने भी अपना एक डोमेस्टिक अब्यूज का प्लेटो तोड़ा था। और मुझे ऐसा लगता है कि शी वॉज द ओनली वन विमेन हु
came into my life on the right time and who guided me कि चारू यार तू इतने 8 सालों से जो डोमेस्टिक अब्यूज सह रही है, इट इज टोटली रॉन्ग, तो तुमको नहीं करना चाहिए। उसने मुझे 1-1.5 घंटा वो काउंसलिंग किया था, और तब मैंने बहुत करेज इकट्ठा करके, तब मैं अविवा लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ एक एडवाइजर थी और मैं अपने घर पे आई थी। जो भाई मेरा मेरे अपोज में था और जो चाहता था, जेन्युइनली वही चाहता था, मेरा बड़ा भाई, एक्चुअली ही इज नो मोर, वी लॉस्ट हिम इन 2023 जनवरी, अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है। तो वो अकेला ही इंसान था कि जिसने चाहा था कि मैं ये शादी ना करूं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको पता था कि अपनी बहन गलत हाथों में जा रही है। माई हस्बैंड वॉज लाइक, ही वॉज ड्रगिस्ट, वो ड्रिंक करता था और उसकी सोच ही वैसी थी। बहुत ही बोलो, फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है, गंदे फ्रेंड सर्कल से था। तो उसके फ्रेंड सर्कल में ही वो लोग ऐसे होते थे कि यार एक नहीं 10 गर्लफ्रेंड रखते थे, तो उनको ऐसे लगता था कि ये लड़की भी ऐसी है। एवरीथिंग कम्स, लड़की के लिए लाइफ में ना एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, कैरेक्टर। तो अपने कैरेक्टर पे दाग तो लेना ही नहीं था मुझे, इसीलिए मैंने, मुझे सब पता होते हुए भी उसी इंसान से शादी की। तो इट वॉज नेवर इजी। हाँ, पर मैं वो जब वापस आई तो मेरी फैमिली, तभी भी और अभी भी, क्योंकि मैंने एक इंसान से 2 बार शादी की है, तो पहली बार बोलो या दूसरी बार बोलो, मेरी फैमिली में मुझे वेलकम हुआ है। और ऑनेस्टली टच वुड, मेरी फैमिली ऐसी है कि उन्होंने मेरे ऊपर कभी कोई डिसीजन थोपे नहीं। हाँ, सेकेंड टाइम फिर से शादी करने के लिए उन्होंने फोर्स करा था, जिसके टॉपिक पे हम आएंगे। बट जब मैं पहली बार घर छोड़ के आई थी तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ही अच्छे से लाड प्यार से रखा, मेरे भाइयों ने मुझे समझा। दूसरा नंबर का जो भाई है अभिजीत, वो जाके मेरे बेटे को लेके आया। बहन ने मुझे बोला तू टेंशन मत ले, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। और माय सिस्टर, शी इज लाइक माय सेकंड मदर। हालांकि मतलब वो बहुत ही अभी दिक्कतों से गुजर रही है, बट शी वॉज ऑलवेज ए इंस्पिरेशन। तो उसने मेरा टेक केयर तभी भी किया था, सेकेंड टाइम भी किया है। और यस, आई हैव अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ फैमिली, उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। स्टिल माई सन इज रेज्ड बाय 2 मदर, आई एम प्राउडली सेइंग इट। ग्रेट ग्रेट, डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट इज मस्ट। अगर फैमिली सपोर्ट है, वी कैन ग्रो टू दिस। या और अभी जैसे आपने बताया कि ना काफी आपका डिफिकल्ट जर्नी था फॉर द अब्यूजिव रिलेशनशिप, तो आपको साइकोलॉजिकली और इमोशनली काफी इंसान टूट जाता है। तो वो कैसे आप उभर पाए? मीन्स कुछ प्रोफेशनली कुछ आपने हेल्प लिया था किसी से, जैसे साइकोलॉजिस्ट रहते हैं या कुछ रहता है, या फिर कोई और फ्रेंड थे या कुछ मेंबर्स थे जिनके थ्रू आप ये कुछ कर पाए, उभर पाए इससे? See, honestly, ये सवाल, you're the first person in my life who asked me this question, so thank you so much. I never talk about this because दीपिका पादुकोण जी का भी इंटरव्यू देखा होगा कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है रिलेशनशिप और मैरिजेस और बाकी कई सारी चीजों में। सो मैं ये बताना चाहूंगी कि यस, मैं मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। मैं स्कीजो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर थी, जो कि मुझे नहीं पता था। एक्चुअली जब मैंने अपना करियर ग्रोथ स्टार्ट किया तो मैं पढ़ने लगी थी। जब मैंने एजुकेशन के लिए अप्लाई किया और साथ ही साथ मैं जॉब करती थी, तो मैं सेल्स और मार्केटिंग में थी, तो मुझे प्रेशर बहुत होता था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था। मुझे समझ नहीं आता था कि इतना स्ट्रेस क्यों है। तो उस वक्त कहीं ना कहीं मुझे खुद रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट मी, मेरे साथ कुछ गलत है। तो मैंने खुद ऑनलाइन सर्च करके, बांद्रा में एक काउंसिलर है जिनके इसके पास जाके 6 महीने काउंसिलिंग लिया। कुछ टेस्ट हुए जिसमें पता चला कि आई एम स्कीजो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब ऑलमोस्ट एक फेक गुड पर्सनालिटी जो दुनिया के लिए हंसती खेलती चारू थी, और अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं बहुत ही ब्रोकन पर्सनालिटी थी। तो मैंने जाके ट्रीटमेंट लिया, पर देन शी सजेस्टेड गो टू डॉक्टर वैभव देशपांडे है, जो सत्यमेव जयते में आते थे, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। ओके ओके, ग्रेट। एटलीस्ट कहीं ना कहीं जो है या बोल सकते हैं कि जो प्रोफेशनली जो है साइकोलॉजिस्ट, या कहीं ना कहीं वो जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग इमोशनली जो है फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सब लोग हमें हेल्प करेंगे, लेकिन टू सम एक्सटेंट। तो कहीं ना कहीं हमें प्रोफेशनली भी गाइडेंस लेनी पड़ती है कि हम इसमें से उभर पाए। राइट। तो दूसरा ये, जैसे मैंने आपका प्रोफाइल देखा था और जोश टॉक्स का आपका अभी रिसेंटली हुआ था, वीडियो आपका आया था, अपलोड हुआ था। तो मैंने सुना था कि आपका बड़ा बेटा भी था, उसके पहले कुछ एबॉर्शन भी हुआ था, और प्लस हाँ, बड़ा बेटा भी जो है वो आपके हस्बैंड के इन्फ्लुएंस में आ गया था। तो कुछ आप इंसिडेंट वो बता सकते हैं प्लीज?
एक्चुअली ऑनेस्टली कैसे है कि जैसे मैंने बताया कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे मेंटली डिप्रेस हुआ करती थी, तो उसका असर कहीं ना कहीं बच्चे पे था। तो थोड़ा बहुत उसको लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम था। जब मैं पहले साल अपने मायके में थी, जब मैं आई थी 2005 में, तब वो मेरे साथ ही था, हमने उसको अपने साथ ही रखा था 1 साल तक, तो वो मेरे पास ही था। बहुत सब ऑब्वियसली मैं बहुत छोटी थी, 23 24 एज ही नहीं थी उतनी। जब मतलब लोग शादी करते तब तक तो मैं घर पे आ गई थी। तो 1 साल हम लोगों ने उसको, मेरी बहन भाई ने उसका एडमिशन भी करा था, ऑर्किड स्कूल में चल रहा था, सब ठीक है। पर प्रॉब्लम वो थी कि मेरा हस्बैंड हमेशा आके ड्रिंक करके मुझे अब्यूज करता था। अब्यूज मैं बहुत छोटा वर्ड यूज कर रही हूँ। हिंदी और मराठी में अगर आपको पता हो प्रोस्टिट्यूट को क्या बोला जाता है, उस तरीके की लैंग्वेज मेरे लिए यूज की जाती थी। रात को 2 या 3 बजे दारू पी के आके डोर को जोर जोर से पीटना। मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 सोसाइटी से एग्जिट किया क्योंकि हमको लेटर मिले थे। चौथे में ऐसा हुआ कि हमारा डाइवोर्स म्यूचुअली होने का डिसीजन हो गया। एक दूसरे का डिसीजन हुआ कि ये ले लेंगे वो लेंगे, तो उसमें जानबूझ के मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मैं तब कुछ कर नहीं रही थी, अविवा में एडवाइजर थी, उससे कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, तो उसने कंडीशन डाला कि बच्चे का कस्टडी मुझे चाहिए। तो मैंने बहुत तांडव किया था कि यार नहीं, बच्चा तो नहीं देना। बट मैं छोटी भी बहुत थी, पूरी जिंदगी आगे पड़ी हुई थी, और उसका जो 1 साल जो टॉर्चर था ना, वो बहुत ज्यादा था। तो मेरे पापा ने मुझे ये बोला कि अगर तू बच्चा अपने साथ रखेगी तो ये ऐसा ही करता रहेगा। तो अभी बहुत छोटी है, तो अपने पैरों पे भी नहीं है, हम बाद में देख लेंगे, तो उसको दे दे, तू डाइवोर्स कर ले, 6 महीने में हो जाएगा, तू माइंड से फ्री हो जाएगी, क्योंकि मुझे तभी मेंटल पीस की काफी जरूरत थी। तो बच्चे का कस्टडी उधर चला गया। ऐसा नहीं कि बच्चे का कस्टडी उधर जाने के बाद मैं रुकी, मैं उसको कॉल करती थी बात करने के लिए। बट फिर हमारा, मेरे हस्बैंड का, एक्स हस्बैंड का रिजॉर्ट है नाला सोपारा में, तो हमारा जो कुक था वो मुझे दीदी मानता था रिसोर्ट का। पूरा स्टाफ मुझे दीदी बोलता था। तो मैं जब कॉल करती थी तो मुझे नहीं पता बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। तो मुझे कॉल करके मेरे कुक ने ये बताया कि दीदी आप है ना कॉल मत किया करो, आप कॉल करते हो तो आयुष को मम्मी मारती है, मतलब मेरी सास जो थी, तुम अपनी मम्मी को क्यों याद करते हो और तुम उसकी उसकी बातें क्यों करते हो, हमारे पास हो तो अपनी माँ को पता था। मैं आपको रोक लगाई, मैं उसको कभी भी भूल नहीं सकती। और ऑनेस्टली कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। अगर किसी ने बच्चा पैदा करके अनाथ आश्रम भी दे दिया हो, तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में अपना बच्चा है, ये एहसास है हर एक औरत को रहता है, क्योंकि इट इज अ पेनफुल प्रोसेस, एवरी वुमेन नोज, राइट। तो मेरा बच्चा उसके पास चला गया। ऐसे 4 साल बीत गए। फिर मेरे हस्बैंड ने जब फिर से अप्रोच किया था हमको, तब तो वो आई गेस 6 7 साल का हो चुका था। मतलब मैंने उसको छोड़ा था तब वो 3 साल का था, और जब मेरा हस्बैंड मेरे पास वापस शादी करने के लिए आया तब वो 7 से 8 साल का था। और फिर 8 साल बाद जब मेरे हस्बैंड, मैंने जो सेकंड टाइम उसी से शादी करने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मेरे ऊपर दबाव लाया गया घर वालों से। फ्रेंड सर्कल में मैंने डिस्कस किया कि यार मेरे घर वाले चाह रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाऊं, मेरा लीगल डाइवोर्स हो चुका है, क्या करूं क्या नहीं। करियर के एकदम पीक समय में और ये सब चीजें जब हो रही थी उस समय, मैंने अपने बड़े बेटे का फेस देख के शादी फिर से करने का डिसीजन लिया, और फिर से शादी मेरी हुई मेरे हस्बैंड से। और 2 3 महीने में मैंने एक चेंज देखा। वो चेंज ये था कि अब मेरा बेटा थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका था। अभी मेरा छोटा बेटा 9 साल का है। अगर आप उसको कोई चीज बताओ ना कि ये सस्मित ऐसा करना है, वो वैसा करना है, तो वो हर चीज करेगा। यू नो दैट 9 इयर्स बच्चा बहुत स्मार्ट रहता है, सब समझ में आता है। आज के बच्चे अपने जैसे नहीं है। ओके। तो फिर तभी मेरे हस्बैंड ने बहुत स्मार्टली मेरा जॉब छुड़वाया था कि मैं तुझे काम कर रिसोर्ट पे दे दूंगा, तो उसका मार्केटिंग संभाल, क्योंकि तब मेरा मार्केटिंग का फाइनल ईयर था, एमबीए का फाइनल ईयर चल रहा था, एजुकेशन पूरी हो चुकी थी, मैं एक पोजीशन पे थी। शायद मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी होती तो बहुत बड़ी पोजीशन पे होती। तो जॉब छुड़वा दिया। पर फिर मुझे कैसे पता चला कि मेरे ऊपर वॉच रखा जा रहा है, क्योंकि देखो जैसे दिन है वैसे रात भी है। हाँ, माँ और बाप दोनों इक्वली रहते हैं बच्चे के लिए। कभी पापा ने अच्छा बोला तो पापा के फेवर में, माँ ने अच्छा बोला तो माँ के फेवर में। ये तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, इसीलिए वो बच्चे हैं। तो जब मैंने उसके साथ थोड़ा सा अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया, तो मेरे बेटे ने बोला कि पापा ने मुझे बोला है, तो पापा को मत बताना, पापा ने मुझे बोला है कि मम्मा क्या करती है मुझे बताओ।
कि किससे बात करती है, मैसेज में किससे बात करती है, फोन पे किससे बात करती है, कोई आता है क्या मेरे जाने के बाद घर पे। तो जो मैंने बोला एक डिसऑर्डर होता है, शक का बीमारी, उसका कोई इलाज नहीं है। तो उस तरीके से उसने मेरे वो बेटे को मेरे ऊपर स्पाई करने के लिए छोड़ दिया। वो हर शाम उसको लेके जाता था नीचे और पूरा पूछता था कि मम्मा ने क्या किया, किससे बात की, फिर उसको जो चाहिए वो खाने खा खिलाता पिलाता था। सो फिर मैंने भी थोड़ा सा अलर्ट होना सीख लिया। और वो वही है कि एंड रिजल्ट ऐसा था कि हमारा एक बार बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, एक्सट्रीम झगड़ा हुआ, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारने पीटने की कोशिश की। और जब पहली बार जो चारू निकली थी वो डर डर के भागी थी। बस सेकेंड टाइम जो चारू घर से बाहर निकली थी वो ये सहने वाली नहीं थी। मुझे पेट में लात मारे गए, मेरा बच्चा छोटा था, 1 साल का था। और मतलब मैं एकदम, मेरी काम वाली के सामने मुझे ऐसे ऐसी चीजें, ये तो मतलब तुम्हारे एक एक तुम्हारे कितने सारे अबॉर्शंस हुए हैं, तुम्हारे कितने रिलेशनशिप रहे, ऐसा कभी भी कुछ नहीं था, वो कभी प्रूव भी नहीं कर सकता। पर फिर भी मुझे ऐसी गंदी गंदी चीजें बोली गई मेरे बेटे के सामने, जो कि 12 साल का तब हो चुका था। मुझे लगा कि यार क्या बोल रहे हो तुम। मैंने वो चीजें रोकने की काफी कोशिश की, बट वो सुधरा नहीं। और वो बोलता रहा। तो मैंने उसके मुंह पे हाथ रखा रोकने के लिए, तो उसने मुझे एकदम जोर से पेट में लात मारी और लातों बुक्कों से मारने लगा। तब तो मतलब भाई साहब मेरा जो पेशेंस लेवल था वो टूट गया। मैं उठ गई और उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए कान के नीचे मार दी। फिर उसने मेरे ऊपर हाथ उड़ाया। तो जितना मुझे बन सकता था एज अ फीमेल अपने प्रोटेक्शन में, मैंने उल्टा हाथ उठाना शुरू किया। और मैं चाहती थी कैसे भी ये रुक जाए, क्योंकि काम वाली है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है। तो फिर मैं उसको दरवाजे की तरफ धकेल रही थी कि जाओ जाओ तुम घर के बाहर जाओ। और मैं उसको बाहर धकेल रही हूँ, और उतने में मेरे पीछे से बड़े बेटे ने आके मुझे पंच किया था फाइट में। मैं अस्थमा पेशेंट हूँ, और मैं, आप सोच सकते हो कि जब हम रोते हैं तब हम कितना हाइपर होते हैं। विमेन्स, ऑल विमेन्स आर अंडरस्टैंडिंग दिस, कि हम लोग कितना हाइपर होते हैं। और हम एक लेवल पे आके एकदम फूट फूट के रोते हैं, जब कि कई सारी चीजें लगातार होती है आपके साथ, तो आप टूट जाते हो। तो आप ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो, और उसी टाइम पे पीछे से एकदम मारा, मेरी सांस 2 मिनट के लिए रुक गई। और फिर उसने मुझे ये स्टेटमेंट दिया था, मुझे आज भी याद है। वो कभी नहीं याद होगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी उस जोन में नहीं था, वो ड्रग्स लेके आया था। उसने मुझे एक स्टेटमेंट दिया था कि तू क्यों उनको घर के बाहर निकाल रही है, तू आई है, तू चली जा। तो फिर अब मुझे किसके लिए रुकना था वहां पे, ये मार खाने के लिए, और किसी की घर की काम वाली बनने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ है। तो फिर बस मैंने अपने छोटे बच्चे को उठाया, रेडी वगैरह कराया, और एक ही कपड़े पे उस घर को मैंने 2016 में छोड़ दिया। तो मतलब आप सोच सकते हो कि मेरा बड़ा बेटा अगर मुझे पंच मार रहा है 12 साल की एज में, जो कि उसकी माँ ने उसके लिए सब चीजें की, बट उसका जो अपब्रिंगिंग है उसके बाप की तरफ हुआ है। और उसने, मेरे बहुत सारे दोस्त है जो अभी भी मतलब मेरे हस्बैंड के और मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे ये भी स्टेटमेंट दिया है कि मेरा बड़ा बेटा मेरा नाम सुन के भी चिढ़ता था, जब वो लोग रिजॉर्ट पे जाते थे मेरे हस्बैंड से मिलने, तो वो चारू बुलाता था मुझे। और मतलब मुझे आज ये समझ में आता है, मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे ये बोला कि चारू का नाम मत दो ये वो, और बहुत एग्रेसिव हो जाता था। मतलब आप सोचो कि कितना उसको फीड किया गया होगा मेरे अगेंस्ट। अभी रिसेंटली भी ऐसे हुआ है, अभी हाल फिलहाल में 1 डेढ़ साल पहले लॉकडाउन में वो मेरे पास 1 डेढ़ साल के लिए आया था, सब चीजें सही चल रही थी। ऑल ऑफ सडन वो चला गया घर पे। मैंने बोला क्या हुआ आयुष, तू आ क्यों नहीं रहा है। और उसके बीच में हमारा कोर्ट केस चल रहा है 3 साल से। मेरे हस्बैंड ने, एक्स हस्बैंड ने शादी कर ली है 3 साल पहले विदाउट गिविंग मी डाइवोर्स। तो ये एक एडल्ट्री और बाइगैमी एक्ट है। और मैं पिछले 8 सालों से सेपरेटेड हूँ। बच्चा 1 साल का था तब मैंने घर छोड़ा था, अभी तक उसने 1 रुपया भी नहीं दिया है मेरे बच्चे के लिए। तो मैं उस चीज के लिए लड़ रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा जब यहाँ पे था तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, और वो समझता भी था। अचानक ऐसे हो गया कि जब मेरे हस्बैंड के खिलाफ वारंट निकला है, तब वो बड़े बेटे ने मुझे ऐसा मैसेज किया कि मुझे तुम्हें माँ बोलते हुए भी शर्म आ रही है, कि तुम कैसी माँ हो, पापा के साथ तुम गलत कर रही हो। मतलब उसके पापा ने मुझे छोड़ के किसी और से शादी की, वो उसके लिए सही है, पर तो अगर उसकी माँ अपने दूसरे भाई के लिए स्टैंड ले रही है तो वो गलत है। तो आखिर में जो होता है ना, सोच का फर्क है, आप किसको क्या सोच देते हो। तो मुझे आज प्राउड है कि मेरा जो छोटा बेटा है 2 माओं के साथ है। तो आई एम श्योर कि मैं, लोग बोलते हैं कि अपनी बेटियों को ये सिखाओ, अपने बेटियों को वो सिखाओ, पर मुझे ऐसा बोलना है कि आप अपने बेटे को सिखाओ। मैं अपने बेटे को सिखाऊंगी कि विमेन रिस्पेक्ट करनी तुमको है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लड़की क्यों अपना आप सीख के आए सब।
जैसे लड़की को सिखाया जाता है कि ससुराल में जाके ये करना है वो करना है, तो आपको बचपन से ही बच्चों को ये सिखाना है, अपने बच्चों को सिखाना है। ये हमारी एज अ वीमेन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बेटों को सिखाए कि वीमेन का रिस्पेक्ट करना है। तभी जाके हम, मुझे लगता है और 10-20 साल में विमेन एम्पावरमेंट या विमेन्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता सो है। परफेक्टली सेड। ये सब फेस करने के लिए, उसे उभरने के लिए साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, और प्लस दूसरा जो है आपके बड़े बेटे का भी बढ़ता हुआ आपकी तरफ इस तरीके से हो रहा है एंड यू आर फेसिंग टिल नाउ, तो ये बहुत ही करेज चाहिए ये सब फेस करने के लिए। इट्स वेरी इजी टू से कि यू आर फेसिंग दिस, बट लेकिन अंदर से जो इंसान को रहता है कि बोलना बहुत आसान रहता है, लेकिन अब ये एग्जाम्पल सच हो सकता है, सच हो गया जैसे कि है ना संगत का असर। जैसे आपका बड़ा बेटा आपके हस्बैंड के साथ है, ही हैज बिकम उन संगत एग्रेसिव। का उनको इन्फ्लुएंस हो हम्म। गया, और आपका जो है एग्रेसिव हो गया। अभी आपके साथ जो छोटा बेटा है वो आपकी तरह बन रहा है। तो इट्स टोटली टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉम अ सिंगल मदर, दो बेटे और सिंगल मदर से, और इस तरीके के एग्जाम्पल है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि दूसरी लेडीज पे, आई नो कि बहुत सारे एब्यूजिव रिलेशनशिप्स आजकल चल रहे हैं, चाहे इंडिया है चाहे दुनिया है, बहुत सारे एब्यूजिव रिलेशनशिप चल रहे हैं, और काफी जो है शायद से एक स्पार्क ढूंढ रहे हो कि कुछ ऐसा वो सुन पाए जैसे आपको एक स्पार्क मिला था और आप उभर पाए। तो उस तरीके से आप कुछ एडवाइस बताइए कि जो दूसरी लेडीज हैं या कोई भी किसी के साथ भी, इवन जेंट्स ऑल्सो, कहीं कहीं पे जेंट्स के साथ भी हो रहा है आजकल, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज के साथ हो रहा है। तो क्या कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे कि वो उभर पाए या एटलीस्ट वो आगे बढ़ पाए, एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट बन पाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मेंटली इंडिपेंडेंट, मेंटली स्ट्रांग। तो आप प्लीज कुछ टिप्स बताइए। टिप्स एज सच है नहीं मेरे पास, बट ऑनेस्टली मैं बोलूँ कि मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। आप अगर सोच रहे हो कि डोमेस्टिक अब्यूज या कोई भी अब्यूज, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या कोई भी हो, आजकल ब्रेकअप्स भी बड़े फास्ट होते हैं, हम लोग क्यों मैरिज के पीछे ही जाए। तो मुझे ऐसे लगता है किसी भी तरीके का अब्यूज, आई एम सेइंग किसी भी तरीके का अब्यूज, ऑफिस में हो, घर में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, आपको लेना ही नहीं चाहिए। यू शुड स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, आपको आपके लिए लेना है। अगर मैंने कर दिखाया तो कोई भी लेडी करके दिखा सकती है। और रही बात फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पुराना सोच है कि देखो आजकल हम अपनी बच्चियों को सिखाते हैं, जिनकी भी बेटी है वो एग्री करेंगे, हम इसलिए तो नहीं सिखाते हैं ना कि आगे चल के अपने पति के पास जाके काम धंधा छोड़ के बैठ जाए। हालांकि कभी कभी जरूरत नहीं रहती, दैट डिपेंड्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि विमेन शुड अर्न टिल शी इज अलाइव। उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जॉब नहीं करो तो बिजनेस करो, कुछ ऐसा करो कि आप आपकी इन्वॉल्वमेंट रहे, आप आपकी आइडेंटिटी बना के रखो। मेन हो या विमेन हो, दोनों को अपनी आइडेंटिटी बना के रखनी चाहिए। हम किसी से शादी करते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हम उसकी लाइफ को खरीदते नहीं है। ये बात तो पहली सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। वी डोंट ओन देयर लाइफ, मेल हो फीमेल हो, हम किसी की लाइफ को ओन नहीं करते। हमको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और विमेन्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वी स्पेशली एज ए विमेन्स आर नॉट made for smacked up, dolled up and thrown away. We are here to create the history. So मुझे ऐसे लगता है कि good women's don't make history, bold women's make history. So अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपके लिए स्टैंड लो। कोई यहाँ ये नहीं प्रमोट करना चाहता कि भाई शादी तोड़ो। आपको जो सही लगता है आप करो, आपको रहना है रहो। एक दिन जाके आपकी खुद की जान चली जानी है, तो इससे अच्छा है अगर आप अपने आप को सिक्योर नहीं फील कराते हो, आप ये सोच रहे हो बच्चों के लिए रह रहे हो घर में, उस घर में। बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि अरे बच्चे हैं, बच्चे मेरे भी है, दो दो है, एक नहीं है दो दो है, ठीक है। तो अगर आप ही सिक्योर नहीं हो तो बच्चों को किस तरीके से सिक्योर कराओगे आप? इफ यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर इन योर ओन हाउस, देन हु इज सिक्योर? कभी कभी तो सी, आई हैव अ फ्रेंड, उसके बच्चे भी सिक्योर नहीं थे उसके पति के घर पे। आज उसने, मुझे लगता है 10 या 12 साल बाद अपना घर छोड़ा है। शी इज लाइक एल्डर टू मी एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। बट उसने इतने साल बाद अपना घर छोड़ा है, बच्चों ने निकाला उसको, तब तक तो वो सह ही रही थी,
3 साल पहले वो अलग हुई है। बच्चों ने बोला तुझे रहना है, बच्चे अभी एक कनाडा में पढ़ रहा है और एक अभी 12th में पास आउट हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर तुझे मरना है तो इसके साथ रह, नहीं तो हमारे साथ चल। तो इतना वेट मत करो यार, अपनी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं तो ये भी नहीं बोलती कि भाई कि परफेक्ट। शादी तोड़ो और किसी और के साथ शादी करो। मुझे 8 साल हो गए अलग होके। जो मेरे हस्बैंड को लगता था कि मेरा कहीं पे अफेयर चल रहा है, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं, तो आप भी मानते हो कि अगर मेरा ऐसा कुछ होता तो मैं आज सिंगल थोड़ी ना होती। मैं आज तक ये सोच के किसी और से शादी नहीं कर पा रही हूँ कि यार मेरा तो ठीक है, मेरे बेटे का क्या होगा। तो आज भी कहीं ना कहीं बेटे का ही सोच रही हूँ। मुझे तो कोई भी अपना लेगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में आए वो मेरे बच्चे के साथ मुझे एक्सेप्ट करे। तो वही है बस। और मैंने जो लाइन बोली वो प्लीज मत भूलना। Women's are not made for smacked up, dolled up and thrown away. We should be taken care like a glass, and we are like a glass. Glass once broken cannot be the same. So अपने आप को तोड़ने मत दो। अपने आप को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आके तोड़ के चला जाए। So this is my message to all परफेक्ट। the women. यस यस, डेफिनेटली परफेक्टली सेड कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, और हमें जो है सबके हमें खुद की सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट हमें बनानी है, ताकि जो भी ऐसा हम जो है मेंटली स्ट्रांग बने और हम खुद जो है ये सब चीजें फेस कर पाए। दूसरा मैं जानना चाहूँगी, अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यू आर अ फिल्म प्रोड्यूसर, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपका किस तरीके से रवैया रहा कि जैसे आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का देखा गया है कि इट्स नॉट दैट मच सेफ एंड ऑल। आजकल टीवी में वही बताया जाता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, इंसिडेंट्स आते रहते हैं। तो अगर किसी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्वाइन होना हो, या किसी को भी कोई कैरियर के बारे में सोच रहा हो, तो आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे उसके बारे में? सी पहली बात तो, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है मेरी तरह, वो कोई भी एग्री नहीं करेगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सेफ नहीं है। तो ऐसे तो दुनिया का कोई भी प्रोफेशन सेफ नहीं है। हर प्रोफेशन में सम और दी अदर प्रॉब्लम होती रहती है। आपको किसी को उंगली देनी है, हाथ देना है, वो आपको डिसाइड करना है। हाथों की पांचों उंगलियां सेम नहीं रहती है। इट इज एज अ वीमेन, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ वी आर शोकेसिंग आवर सेल्फ टू अदर। हमारी इंडस्ट्री में 80% फीमेल्स है एक्टर्स के रूप में, सिनेमेटोग्राफर। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा सेक्टर बाकी है फिल्म मेकिंग में या टीवी इंडस्ट्री में जहां पे विमेन्स नहीं है। एवरीवेयर देयर आर विमेन्स। आप उठा के देख लो, हर टॉप पोजीशन में विमेन्स है। चैनल के हेड्स में है, एक्विजिशन में है, हर जगह है। तो इट इज अ सेफेस्ट इंडस्ट्री, बट आपको रहने आना चाहिए। ये इंडस्ट्री क्या, कोई भी जगह हो, विमेन्स के लिए कोई भी चीज सेफ नहीं है। बिकॉज हमको भगवान ने उतना डेलिकेट बनाया हुआ है। हमको अपना शील्ड खुद पहनना है, हमको अपना प्रोटेक्शन खुद करना है। जैसे मैंने बोला, अपने अपने शील्ड को ओढ़ो और चलो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरी जर्नी जो थी वो विस्लिंग वुड से शुरू हुई थी। मैं वहां पे सेल्स और मार्केटिंग में थी, और वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की है। फिर उसके बाद मैंने अपनी फिल्म प्रोड्यूस की। चैलेंजेस आते रहते हैं। लोगों को क्या लगता है कि आप पौधा लगाओ और तुरंत ही थोड़ी ना आएगा उसका। मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ, ऑनेस्टली मैं अभी भी सक्सेसफुल नहीं हूँ। एवरी ईयर फिल्म मेकिंग, फिल्म इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई भी सेटल नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो सेटल्ड है, पर जो मिड लेवल पे है वो अभी भी एवरीडे का स्ट्रगल करते हैं। हर एक्टर की लाइफ में, हर एक प्रोफेशनल पर्सन की लाइफ में अलग अलग तरीके का स्ट्रगल है। बिकॉज हमारी इनकम कांस्टेंट नहीं होती, हमको मंथली पेमेंट नहीं होती। सो हाँ, बट जिसको पैशन है ना, वो कुछ भी कर जाता है। ये एक ही इंडस्ट्री है जो आपको एक दिन में नाम दिला सकती है। सो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सेफेस्ट इंडस्ट्री है। ऐसे यहाँ पे कोई भेड़िए नहीं बैठे हुए कि जो आपको खा जाएंगे। सो विमेन्स के लिए तो बहुत सेफ इंडस्ट्री है। रिस्क भी बहुत है यहाँ पे सब लोगों का। तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री, एनिमेशन हो, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो, बहुत ही ज्यादा करियर ऑप्शंस है। मुझे लगता है कि बाकी के सेक्टर्स में ऑप्शंस खत्म हो गए। हर कोई इंजीनियर डॉक्टर बनेगा तो मीडिया एजेंसी में कौन आएगा। अपनी ऐसी फील्ड है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इसमें इतने सारे सेक्टर्स और इतने सारे पोजीशंस है कि आप कुछ भी कर सकते हो। इफ यू हैव टैलेंट यू कैन मेक मिरेकल्स। और बहुत ही सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 8 सालों से हूँ, शायद उससे ज्यादा। डेफिनेटली मैम। और आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज अ फिल्म प्रोड्यूसर, आप वेब सीरीज बनाती हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो किस टाइप की आप अभी वेब सीरीज रिसेंटली अभी अभी आपकी कौन सी चल रही है?
मेरा एक्चुअली जो जॉनर है वो क्राइम और थ्रिलर सस्पेंस जॉनर है। तो मेरी जो पहली फिल्म थी वो बच्चों के ऊपर थी, वो सम रीजन नहीं रिलीज हो पाई। क्राइम पेट्रोल डायल 100 मैंने किया, कुछ अवार्ड शोज किए हैं। और लेटेस्ट हमारी एक पुस्तक करके वेब सीरीज थी, वो भी क्राइम थ्रिलर जॉनर ही था। सो वो जो अभी अतरंगी ओटीटी पे चल रही है। तो ये है मेरे करंट प्रोजेक्ट्स। और अभी भी मैं क्राइम थ्रिलर पे ही बना रही हूँ। हमारी एक सीरीज आने वाली है गॉन केस, जो क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं हम क्राइम को और मिस्ट्री और थ्रिलर को बढ़ावा नहीं दे रहे, पर हाँ, दुनिया में जो हो रहा है वो दिखाने की हम जरूर कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके का अवेयरनेस ही है कि कौन सी चीजों से हमको दूर रहना चाहिए। सो दैट्स इट। यस यस। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंस दिया। आपने किस तरीके से सारे बैरियर्स तोड़े, लाइक सोसाइटल बैरियर हो, चाहे फैमिली रिलेटेड कुछ बैरियर हो, चाहे ये अब्यूजिव रिलेशनशिप का बैरियर था। तो इट रियली नीड्स अ गट्स कि ये जो है मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, प्लस अंदर से एक, जैसे बोलते हैं ना कि औरत जो है कभी अगर माँ बनती है, अगर वो ममता बनती है, तो कहीं ना कहीं वो चंडी का रूप भी लेती है। तो आपने जो है सभी टाइप के, आपने जो है माता रानी के रूप आपने दिखा दिए हैं कि अ लेडी कैन डू एनीथिंग। हमें जो है गिव अप नहीं करना है। अगर हम लोग टूट रहे हैं, हम लोग गिरे हैं, वी हैव टू बाउंस बैक एंड वी हैव टू डू दी स्काई लिमिट्स अचीवमेंट्स। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात मैं करके तो और बोलती हूँ कि वेरी इंस्पायरिंग। विमेन्स के अंदर जो टैलेंट है वो मेंस के अंदर भी नहीं है। अगर हम अभी रो रहे हैं और हमारा बच्चा सामने आ जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं कभी कभी रोती हूँ और मेरा बेटा सामने आ जाता है, तो मैं तुरंत, वो पूछता है ना जब कि मम्मा क्या हुआ, तो मैं तुरंत पोछ लेती हूँ, बोलती नहीं नहीं यार कुछ नहीं, नहीं यू आर लुकिंग सैड, सो नहीं। सो ये हमारे अंदर ही टैलेंट है। इसलिए नारी को शक्ति का रूप माना जाता है, और हम लोग एक्चुअली शक्ति है जिसको शार्प करना है। और हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि ये भी है कि जो शिव जी ने जो रूप लिया है, नट नारेश्वरी, तो आदि और शक्ति दोनों का मिलन होता है तभी चीजें पॉसिबल होती है। तो जैसी हमारी एज अ वीमेन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मेल हमें देख रहा है तो वो भी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और दोनों चीजें बैलेंस करे। तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी मैरिज ब्रेक नहीं होगी, ना कोई रिलेशनशिप ब्रेक होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। बहुत ही अच्छा लगा, इंस्पायरिंग फॉर मी। एंड डेफिनेटली जो भी ये वीडियो देखने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं स्पार्क मिलेगा और इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली उनको मिलने ही वाला है। तो एंड थैंक यू सो मच टू सोनिया मैम। उनके थ्रू जो है मैं आपके साथ जुड़ पाई फॉर कोलैबोरेशन। एंड देविशा मैम, हंसा मैम, या थैंक्स इट्स सोनिया। रियली। सोनिया ने एक्चुअली एक दही हंडी जैसा ये किया है। उसने 22 लोगों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। उसको ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम लगा है। हर एक जगह से हर एक लेडी को खड़ा करना और उनको एज अ टीम लाना। तो थैंक्स सोनिया। और WSCCI नेशनल काउंसिल को भी मेरा थैंक यू है कि उन्होंने ये सब किया है। सो यस यस एंड थैंक्स टू यू डेफिनेटली। कि तुमने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आके तुम्हारे साथ बात कर सकूं। Thank you so much. Pleasure is mine. या So see you next time. And श्योर if श्योर। anyone is having references for another inspiring talks, please DM me. And I'm always ready to take the inspiring talks. जो भी ladies हैं, even men also, सबकी जर्नी यूनिक है। सब कहीं ना कहीं बैरियर्स तोड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली कहीं पे भी किसी के पास भी रेफरेंस है, आई एम ऑलवेज ओपन टू डू द इंस्पायरिंग टॉक्स। So thank you so much. या Stay या tuned. या बाय Yeah, बाय। yeah. Thank you.